Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello dear students, how are you? This is our lecture number 13. In the previous lecture, we discussed about Night Mail by W.H. Auden. So in lecture number 11 and lecture number 12, we not only went through the text, but also we did our exercise about question answer session. Basically, the lesson, as we have already read, is about a night mail. The title of the poem also signifies this, the love of poet about this mail train. It is not a passenger train, rather it carries various letters, business letters, personal letters, postal orders, and various other objects to common people belonging to various segments of society. What we are going to do? There are certain words. We would have their phonetic transcription, their meaning, and how to pronounce them. The first one is gradient. It's a noun. Ascent or descent. चढ़ाई या उतराई. On a highway, railroad, सड़क की या रेल की पटरी की. Moorland. A tract of open land, often overgrown with shrubs. ये खुली ज़मीन को कहते हैं मोरलैंड, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की घाटियाँ या इसको मार्शी एरिया भी कहते हैं, दलदली इलाका भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ थोड़ी जड़ी बूटियाँ वगैरह निकली होती हैं. शॉवल, शाह साउंड, कट साउंड, वाह साउंड, ला साउंड, शॉवल. A tool with broad blade for moving soil, snow. जो मजदूर जो हैं वो शॉवल करते हैं, बेलचा होता है. Snorting, breathing violently through nostrils with a loud noise. नथनों से जो हवा है उसको निकालना, आवाज़ को निकालना. Wind bent, घास से झुकी हुई. Kept from sailing by wind from wrong direction. हवा से झुकी हुई कोई चीज़ जब हवा मुसलसल चलती है तो बड़ी बड़ी जो घास है वो झुक जाती है. अप्रोच, आमद को कहते हैं, तो कम नियर. स्टेयर, घूरना. टू गेज, फिक्स्डली एंड इंटेंटली, किसी एक जगह पर नज़र जमा के घूमते रहना, घूरते रहना. इरादतन, इंटेंट इरादे को कहते हैं. विद ओपन आइज, खुली आंखों के साथ. स्लम्बर, ऊँगना या सोना. टू स्लीप, डोज ऑफ. डिसेंट, डिसेंड, टू गो फ्रॉम अ हायर टू लोअर प्लेस, ऊंची जगह से नीचे वाली जगह की तरफ आना, उसको डिसेंड कहते हैं. So here is a note that the students would be told about the importance of street and stress and intonation pattern, and what is it? It is the rise and fall of
language. So this activity would be done within the classroom. Now we have word cloud. Word cloud is a group of words connecting to the text. Based on the picture and the poem, write keywords in the boxes given below. Here is an activity. It is very much similar to that of the previous activities, जिसमें हम माइंड मैपिंग करते हैं. सो नाइट मेल की मुख्तलिफ रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो हमने इसके अंदर लगाना है. फॉर एग्जांपल एक दो मैं आपको क्लू के तौर पे बता देता हूँ. रेगुलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, इसी तरह चेक्स पोस्ट लेके आने वाली, इस तरह की बाकी जो है वो आपने इसको फिलअप करना है. सो रीडिंग मेक अस वाइज. रीडिंग की वजह से हम काफ़ी इंसान जो है वो सीखता है. सॉरी, दरमियान में ज़रा डिस्टर्बेंस थोड़ी सी होगी. Read the poem and write words that are related to the night mail. जो night mail के related जो word है आप उसमें लिखें. Using your ideas from the word cloud, compose a paragraph about 50 to 60 words on night mail. आपने उन्हीं words को use करते हुए मैंने आपको उसके central idea explanation भी आपको करवाई और उसकी भी मदद देकर आप इसको wind up कर सकते हैं. Then train station is a compound word. ट्रेन स्टेशन, इसी तरह एयरप्लेन, आई बॉल. कंपाउंड वर्ड्स जो उनसे हैं वो सनशाइन. इसी तरह ट्रेन स्टेशन इज़ अ कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स जॉइन टुगेदर टू क्रिएट अ नाउन, न्यू नाउन दैट हैज़ एंटायरली अ न्यू मीनिंग, जिसका मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. Sunshine. The sunshine says hello to the sweet smelling flowers. सूरज की रोशनी वो हेलो कहती है स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, मीठे खुशबूदार फूलों को. It wakes the clouds like a trumpet in the sky. ये बेदार करती है बादलों को एक ट्रम्पेट की तरह. ट्रम्पेट एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्रास फैमिली से जिसका तल्लुक होता है, तो जिसको हम तूतनी कहते हैं, कि जिस तरह छोटा सा बाजा जो सा है वो बुलाया जाता है आसमान में. इट टेल्स द मून टू गो टू स्लीप. जब सूरज की शुआएं निकलती हैं तो वो चांद को कहती हैं जा भाई सो जा. इट सेज चिल्ड्रन वेक अप, टाइम टू गो टू स्कूल. The plants thank the sun for the sunshine it provides. The owls know it's time for bed because the sunshine tells them, and that's why the sunshine is so important. So here is the importance of the sunshine and various services which sunshine gives us. It all not only awakens the earth, but also due to sunshine the moon disappears and people, especially children, they have to wake up and they have to leave their bed
in order to get ready for their school. So, and the owl, that is the night bird, it is the sleeping time for him because he stays awake at night, and when the day starts, he starts the owls, they start their sleep. So next we have language corner, degrees of adjective. Adjective is basically a word that qualifies a noun. We have 3 degrees of adjective. The first one is called positive degree. The second one is comparative, because it compares two things. And when the comparison is more, it is called superlative degree, comparing more. For example, big, bigger, biggest, noisily, more noisily, most noisily, rich, richer, richest, poor, poorer, poorest, high, higher, highest, highest, lazy, lazier, laziest. So we have डिग्रीज ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको आपने कंप्लीट करना है, बल्कि मैंने आपको करवा दिया, बस आपने इसको फिलअप करना है. होमोफोन्स, होमोफोन्स, होमो से मुराद होता है एक जैसा, फोन से मुराद है साउंड. तो वो दो वर्ड्स जिनकी आवाज एक जैसी हो, मीनिंग डिफरेंट हो, उसको होमोफोन कहते हैं. Homophones are confusing because of the difference in meaning. Mixing up similar sounding words need to be understood. Slight sound में spelling का different होगा, आवाज़ एक जैसी होती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से हम उसको फिर उसका जो मीनिंग है वो इन्फर करते हैं, हम उसको मीनिंग को समझते हैं. While writing these words, the mistakes can be easily noticed. In order to write correct English, we need to understand the difference in the meaning of the homophones. For example, mail, M-A-I-L, mail. I received my admission confirmation letter in the mail today. आज में मुझे खत के ज़रिए अपने दाखिले के कंफर्मेशन का पता चला. M-A-I-L, mail. Second one is male, same sound, M-A-L-E, male. That is opposite of female. My brother is blessed with a male child. मेरे बेटे के हाँ एक मेरे भाई के हाँ एक बेटा पैदा हुआ, मेल चाइल्ड पैदा हुआ. Make meaningful sentences of these pairs of words. ये इन्हीं को pairs of word कहते हैं कि साउंड सेम होगी, मीनिंग डिफरेंट होगा, और उनका आप सेंटेंसेस भी डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल, B-I-R-T-H, birth, देन B-E-R-T-H, birth. फर्स्ट वन जो है वो पैदाइश को कहते हैं. दूसरा बर्थ, जो बच्चे ट्रेन का जिन्होंने सफ़र किया हो तो ऊपर उसके एक बर्थ बनी होती है जहाँ पे लेट के आराम किया जा सकता है, अगर लंबा सफ़र हो तो उसको बर्थ कहते हैं. इसी तरह B-A-I-L, बेल, ज़मानत जब दी जाती है. B-A-L, बेल, ये गांड को कहते हैं. प्रिंसिपल, P-A-L, प्रिंसिपल जो होता है वो किसी अदारे का सरबराह होता है. वो P-R-I-N-C-I-P-L-E, P-L-E जिसके एंड पे होगा, उससे मुराद
असूल होते हैं। ब्रेक, BREAK, ब्रेक तोड़ने को कहते हैं किसी चीज़ के, और BRAKE ब्रेक ये साइकिल की ब्रेक को कहते हैं। अब आपने इसके सेंटेंस भी बनाने हैं ताकि इनके मीनिंग डिफरेंट हो, वाजे हो। So tenses. A verb is a doing word or action. Verb किसी भी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम को, फेल को ज़ाहिर करता है। These actions take place at different times, और ये जो अमल होता है, ये जो एक्शन है वो मुख्तलिफ वक्त में होता है। Now present, मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है हम उसको प्रेजेंट कहेंगे। देन पास्ट, फिर प्रीवियस कोई एक्टिविटी अगर परफॉर्म की है उसको हम पास्ट कहेंगे। स्टिल टू हैपन, अभी जो काम होने वाला है। फ्यूचर, उसके लिए फ्यूचर टेंस यूज होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। फॉर एग्जांपल, आई डू, ये प्रेजेंट है, मैं काम करता हूँ, या मैंने, आई डिड, मैंने किया, आई विल डू, मैं करूँगा। पास्ट टेंस की एग्जांपल, the past tense of verbs expresses events or action that already occurred, जो काम पहले हो चुके, जिस तरह हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 वाइंड अप कर दिया, यूनिट नंबर 3 का टेक्स्ट पढ़ लिया, यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन आंसर का सेक्शन हो गया। इवन इससे पहले जो हमने काम किया हुआ वो भी पास्ट का हिस्सा हो गया। Now there are examples. I worked, मैंने काम किया। I slept, मैं सोया रात को, मैं सोया। She dropped the packet on the floor, उसने फर्श पर पैकेट को गिराया। So आप इन एग्जाम्पल्स से भी पता लग जाता है, फॉर्म ऑफ वर्ब से भी इंडिकेशन हो जाती है कि उसमें टेंस जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल, जो प्रेजेंट टेंस है, अब फर्स्ट जो हमारे पास डू, फर्स्ट फॉर्म, इसको प्रेजेंट फॉर्म ही कहते हैं, और डिड सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं। बेसिकली इन फॉर्म्स से हमें पता चलता है कि हम उसको किस टेंस में फॉल करवाएंगे। नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू पीपल, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट टेंस। अभी मैंने जिस तरह बताया, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है। दे लाइक टू ऑर्डर चाइनीज फूड, 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको कर दूंगा, बाकी आपने खुद करनी है। दे लाइक, इसमें जो मेन वर्ब लाइक है ये प्रेजेंट फॉर्म है। इस प्रेजेंट फॉर्म को हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है, और पास्ट फॉर्म जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल दी, ये देखिए हम आपके सामने, पास्ट डिड सेकंड फॉर्म, तो आपने यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको कन्वर्ट कर देना है सेकंड फॉर्म। दे लाइक टू ऑर्डर चाइनीज फूड, दे लाइक्ड, भी मैं ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। माई अंकल स्लीप्स इन द आफ्टरनून, मेरे चचा दोपहर को आराम करते हैं, इसको कैलूला भी कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत थी कि आप दोपहर के खाने के बाद और ज़ोहर की नमाज के बाद आप कैलूला किया करते थे, आराम किया करते थे, और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मेरे अंकल जो हैं वो सोते हैं दोपहर को, क्या होगा जी, जो मेन वर्ब यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म स्लीप्स, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड फॉर्म में,
और स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लीप्ड नहीं होती, ये इरेगुलर वर्ब है। जिस तरह वर्ब मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ब्स रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं। रेगुलर वो हैं, यानी कि लाइक है तो इसके साथ इसकी सेकंड फॉर्म जब बनाएंगे तो ईडी लग जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। इसी तरह स्लीप्स है तो माय अंकल स्लीप्ड नहीं होगा बल्कि स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, इरेगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसी तरह आगे वाले आपकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद उसको वाइंड अप करना है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट पंक्चुएशन। Punctuate the following passage using various full stop, comma, capital letter, etc. इस एक्टिविटी में आपने थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, बल्कि ये क्लास के अंदर भी एक्टिविटी होगी, उसको दोबारा चेक भी किया जाएगा। तो बच्चों ये देखें, जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, और उसके वेरी नेक्स्ट जो भी वर्ड है, अगर वो आर्टिकल में से कोई है या कोई नाउन है या कोई भी वर्ड है, सेंटेंस जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल लेटर होगा, बड़ी ABC जिसको हम कहते हैं, उसके साथ स्टार्ट होगा। जिस तरह ये देखें, फुल स्टॉप के बाद ये दा लगा होगा, दा का ये टी कैपिटल है, और उसके बाद वाले सारे स्मॉल लेटर आ रहे हैं। देन अगेन यहाँ पर भी अभी आप देखेंगे तो पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पे सेंटेंस वाइंड अप हो गया, यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप। और कॉमा कहाँ पे लगता है, जहाँ पर आपने 2-3 चीज़ों का बात कर रहे हो तो उनके दरमियान में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। पैसेज हमारे पास द राइट ब्रदर्स, अच्छा इसमें 2-3 और बातें जो आपको बताने वाली वो ये भी हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, ये मैंने जब आपको नाउन के बारे में बताया, स्पेसिफिक जो नेम होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जहाँ पर भी टेक्स्ट के दरमियान में भी अगर आ रहा है तो वो कैपिटल होगा। जिस तरह द राइट ब्रदर्स, अब ये T कैपिटल, W कैपिटल, B कैपिटल, invented the first successful airplane, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। T कैपिटल, W कैपिटल, B कैपिटल। वाइट ब्रदर्स का W भी कैपिटल और B भी कैपिटल, वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हमने इसको फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह आगे इसको आप एक्टिविटी को वाइंड अप करेंगे। A full stop is used at the end of a statement or command. Command से मुराद हुक्मिया फिक्रा होता है। जिस तरह पॉजिटिव टेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इसी तरह जब किसी काम के करने से मना किया जाए या तरगीब दी जाए उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कमांड भी हो सकती है उसके अंदर, सजेशन भी होती है, और ज़्यादातर वो वर्ड जो हैं वो
वर्ब से शुरू होते हैं। जिस तरह ये देखें ना, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस की टाइप, पंक्चुएट करें फॉलोइंग पैसेज, मदरजा झैल जो है वो जो पैसेज है उसको, ज़्यादा ये वर्ब से शुरू होते हैं। ओपन द विंडो, डोंट सिट इन द सन, वॉश योर टीथ, ओपन योर बुक। तो ये सारे के सारे क्या होगा, कमांड सेंटेंस कह लें इसको, और या फिर इसमें किसी को मना भी किया जाता है, डो नॉट सिट इन द सन, फॉरबिड कर रहे हैं आप किसी को। एग्जाम्पल, देयर आर 2 विंडोज इन माई रूम, बात कंप्लीट हो गई। डोंट मेक नॉइज, ये अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल आ गई हमारे पास। कॉमा, a comma is used to separate 3 or more things in a sentence। जितना मैंने पहले अभी आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर 2-3 बातें उसको आप सेपरेट करना चाह रहे हो तो उसके दरमियान कॉमा आएगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड एंड 3 टाइम्स और मोर, वो यूज़ कॉमा, यानी कि बार बार एंड लगाने के बजाय हम उस वहाँ पर कॉमा लगाते हैं। बट वी यूज़ द वर्ड एंड बिफोर द लास्ट थिंग, आखिरी जो थिंग होगी उसके पास पहले एंड लगेगा। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, पहले मैं गलत पढ़ूंगा, रॉन्ग पढ़ूंगा, फिर उसके बाद करेक्ट उसका बताऊंगा। He has an apple and a banana and an orange and a pineapple। बजाय इसके एंड आप बार बार लगाएं, उसकी जगह पे आप करेंगे she has an apple, comma, an orange, comma, a banana and a pineapple। आखिरी जो चीज़ होगी, द लास्ट थिंग, उससे पहले क्या होगा, एंड लगाएंगे। दिस इज इंस्टेड ऑफ सेइंग आई बॉट अ शर्ट एंड स्वेटर एंड सॉक्स एंड शूज, हम उसकी जगह क्या कहते हैं, वो बॉट अ शर्ट, ये देखें जो मैंने आपको बताया पहले, कॉमा लगा लिया, स्वेटर कॉमा लगा दिया, सॉक्स एंड शूज। अब जो लास्ट जो भी कोई चीज़ होगी उसके साथ हम उसको एंड लगाएंगे। देन वी हैव कैपिटल लेटर्स। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में जे कहीं पे भी कौन कौन से लेटर हैं जो कैपिटल होंगे, वो बिगिन द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड कैपिटल होगा। इसी तरह जो प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ पीपल, सिटीज, मंथ्स, डेज, स्पेशल प्लेसेस, उनको प्रॉपर नाउन के साथ यानी कि वो जो प्रॉपर नाउन है उनको कैपिटल वर्ड के साथ लिखा जाता है। जैसे इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद का आई कैपिटल, एक तो ये स्टार्ट है वर्ड उसकी वजह से, दूसरा पाकिस्तान का पी कैपिटल। सो बाकी इंशाल्लाह जो टास्क है वो हम अगले यूनिट में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।